سب کہ آمین ہاللویا. اس کلام کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ان کا زوردار. آپ سب خوش ہیں؟ بڑی زبردست ورشپ ہوئی ہے اور اسی طرح ہم نے خدا کی ورشپ کرتے رہنا. آمین. کیونکہ جب پرستش کی جاتی ہے تو خدا کا تخت لگتا ہے اور جب خدا کا تخت لگتا ہے تو پھر خدا بولتا ہے. ہاللویا. پہلے ہم بولتے ہیں، اب وقت ہے کہ کون ہم سے بولے. اور جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو خدا بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے. اور اب وقت ہے کہ خدا ہم سے بولے اور ہم نے بھی کیسے سننا ہے؟ آواز نہیں ہے. کیسے سننا ہے؟ کون کون غور سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاللویا ہاللویا. برکت لینے کے لیے تیار ہیں؟ لاسٹ فرائیڈے کیا کلام ہوا تھا؟ جی کوئی اور بھی بتا دیں کیونکہ باجی نے لکھا ہے. یاد ہاللویا. پیچھے بہن کے لیے زوردار تالیاں. بلا ناگا کیا کرنی ہے؟ دعا. بلا ناگا کون کون دعا کرتا ہے؟ آمین. ویری گڈ. دعا جو ہے وہ روحانی شخص کی سانس. اگر ہم جسمانی طور پہ دیکھیں، اگر سانس ہماری رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم روحانی طور پر اپنی دعا سٹاپ کر دیتے ہیں یا دعا ہماری رک جاتی ہے یا ہم مصروف ہو جاتے ہیں، دعا نہیں کرتے، تو روحانی طور پہ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ آج بہت سارے لوگ دعا کو چھوڑ کے وہ ڈیڈ ہو گئے، وہ مر چکے ہیں. کیونکہ روحانی سانس کیا ہو گئی ہے؟ کیا ہو گئی ہے؟ دعا کرتے ہیں آپ کرتے ہیں. دعا بہت ضروری ہے. کلام کون کون لے کر آئے ساتھ بائبل؟ باقی کرسچن کرسچن ہے آپ؟ ویئر از یور بائبل؟ فون والی نہیں، بائبل. بائبل جو کتاب، بائبل کس کس کے گھر پر موجود ہے؟ سب کے گھر پر. کس کس کے گھر پہ نہیں ہے؟ جس کے گھر پر نہیں ہے میں اسے دوں گا، منسٹری دے گی اسے. بتائیں. سب کے گھر میں موجود ہے تو پھر ہم نے لے کر آنا. ہم کہاں آ رہے ہیں؟ اسی کتنے آ رہے ہیں؟ اسی چرچ آ رہے ہیں، اسی عبادت کرن آ رہے ہیں. ایک کلام جو بک ہے زندگی دینے والی، اگر ہم نے سیکھنا ہے تو اس کو ہم نے ساتھ لے کر. اسکول کیسے جاتے ہیں؟ نہیں کہا رکھ جاندے جی، کہا رکھ کے جاندے پر کی نہیں پھر کی کیا جاندہ ہے؟ تسی بھی کتنے جاؤ تو واپسی لے کے. ہاللویا. لگتے کہ دن انجی کرنی پہ پھر نیکسٹ ٹائم سب جڑی بائبلز ہیں وہ سارے اپنے نال لے کے آن گے. ہاللویا. پھر کہہ رہا ہوں جس کے پاس نہیں ہے اسے منسٹری دے گی، اور اگر آپ کے پاس ہے آپ لے کر آئیں. آپ کو یہ کتاب بائبل مقدس پڑھنی نہیں آتی، لیکن جب آپ لے کر آئیں گے نا اسے آپ کھولیں گے تو میں آپ کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پڑھنی آ جائے گی. اس میں قدرت ہے، قدرت ہے اس میں. حقیقت میں کئی لوگوں نے اسی طرح اردو سیکھی ہے اور بائبل کو آج وہ پڑھتے ہیں. آمین. سب پہ ہاللویا. نیکسٹ ٹائم اسے نام لے کے وائر تے بول ہے آپ کی ہے نا باجی پر بھی اچھا آپ لوگ بھی بیٹا ہے نا گھر پہ ساتھ لے کر آئے، کیونکہ آپ کلام کو سننے کے لیے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں.
हालेलुया। जस्ट लाइक ये एक स्कूल है और यहाँ पर खुदा का कलाम सिखाया जाता है और हमने कलाम को सीखना। आमीन, हालेलुया। तो आंटियाँ भी लेकर आए, बुजुर्ग भी लेकर आए, भाई भी लेकर आए। अयाज भाई का नेक्स्ट ये कौन सी नेक्स्ट टाइम है? बहुत जल्द आ जाएगा। है रवि, वेयर इज योर बाइबल? चाहे आप इंतजामिया में हैं या चाहे साउंड चला रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं, आपने बाइबल लेकर आना। जस्टिन भाई, वेयर इज योर बाइबल? आपने लोगों की अच्छी बजाई है, नेक्स्ट टाइम आपने भी लेकर आना। आमीन, हालेलुया। कहीं खुदावंद यीशु मुझे माफ कर, नेक्स्ट टाइम बाइबल मुकद्दस मैं साथ लेकर आऊंगा। आमीन। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील, और जो उर्दू को पढ़ लिख लेते हैं वो अपने साथ कॉपी भी लेकर आया करें, पेन लेकर आया करें, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से कलाम समझ आए। जितना आपको कलाम समझ आएगा ना, उतना खुदा को जानेगा, उतना खुदा के बारे में आपको पता चलेगा कि खुदा कैसा है, खुदा क्या क्या करता है, खुदा क्या क्या कुछ कर लेता है। आपको सब पता चलेगा, खुदा के बारे में आप समझना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा खुदा की कुदरत के बारे में, खुदा के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है। हालेलुया। जानना चाहते हैं? जिन लोगों ने खुदा को जानना है वो बाइबल मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लेना शुरू किया। अक्सर एक तस्वीर आती है फेसबुक पर, एक बंदा खड़ा हुआ कह रहा है खुदा मुझसे बोल, मुझसे कोई बात कर, और ऊपर से एक हाथ आ रहा है और बाइबल मुकद्दस है हाथ में और खुदा उसे बोल दे, ये खुदा ने बोला है। हालेलुया। और जो कुछ हम इसमें से सुनते हैं, सीखते हैं, याद रखें हम बरकत को हासिल करते हैं। जो कोई इसकी तरफ निगाह करता है वो भलाई को देखता है, जो इसकी तरफ तवज्जो करता है उसकी जिंदगी में बरकत आ जाती है। सब कहें आमीन, हालेलुया। इनको थोड़ा कम करें। 8वां बाब और 5वीं आयत थोड़ा सा खोल। प्लीज मत्ती की अंजील 8वां बाब और 5वीं आयत बड़े गौर से आपने सुनना जी। और जब वो कुफरनहूम में दाखिल हुआ जी तो एक सूबादार उसके पास आया जी और उसकी मिन्नत करके कहा, आए खुदावन, मेरा हाकिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि एक शख्स सूबेदार है और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है और आकर उसने कहा है, ए खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा है। यहाँ एक शख्स यीशु के पास आया है और आकर ये कहता है कि मेरा खादिम, खादिम किसे कहते हैं? बोलो बोलो, खादिम किसे कहते हैं? थोड़ा थोड़ा आगे आइए, आगे पीछे आने वाले को थोड़ी जगह। खादिम किसे कहते हैं? नौकर। और यहाँ पर ये सूबेदार है, ये कहता है कि मेरा नौकर की ये बीमार है। कहता है मेरा नौकर बीमार है और उसे मर्ज क्या है? सब बोले क्या है? तुसी तो ठीक हो ना, ऊंची आवाज से बोलो, क्या है इसे मर्ज? फालिज का मर्ज, फालिज की बीमारी। और आपको पता है फालिज जिसको हो जाता है वो ना हिल सकता है, ना उठ सकता है, ना खुद कहीं जा सकता है, यानी इंग्लिश में पैरालाइज। किसी को एक साइड का पैरालाइज हो जाता है, फालिज हो जाता है, किसी को पूरी बॉडी का हो जाता है,
किसी को यहाँ से नीचे हिस्से का पैरालाइज हो जाता है और वो उसी जगह, वो जो जगह होती है वो डेड हो जाती है। अगर एक साइड का हुआ है तो एक साइड डेड हो जाएगी, एक साइड काम नहीं करेगी, वो सुन्न हो जाएगी। फालिज इंसान को बिस्तर पर डाल देती है, और जिसे फालिज होता है वो कुछ कर नहीं सकता, ना वो जॉब कर सकता है, ना अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकता। और ऐसी बीमारी का शिकार इसका नौकर, और ये खुदावंद यीशु के पास आया और आकर उसकी मिन्नत करता है। उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद, मैंने तेरे बारे में सुना, क्योंकि बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों पर यीशु मसीह का नाम लोग सुनते थे कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है, यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह बहरों को कान देता है, यीशु मसीह गूंगों को जुबान देता है। लोगों ने सुना कि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, यीशु मसीह अजीब और जलाली काम करता है, यीशु मसीह बदरूहों को निकालता है, यीशु मसीह हर एक को शिफा दे रहा है। और ये शख्स भी यीशु के पास आ गया है। हम भी बाज़ औक़ात जब यीशु के बारे में सुनते हैं तो हम यीशु के कदमों में आ जाते हैं, और ये शख्स भी यीशु के पास आया है और कहता है कि मेरे खादिम को क्या है, सब बोले क्या है, फालिज। और ये खुदावंद की मिन्नत कर रहा है, समाजित कर रहा है कि खुदावंद, घर में वो पड़ा हुआ है, नहायत तकलीफ में। याद रखे, जो शख्स तकलीफ और दर्द में होता है वो वही शख्स जानता है जिसके ऊपर गुजर रही होती है। पर उसका जो सरदार है वो उसके लिए तड़प रखता है कि ये शख्स इस तकलीफ से निकल जाए। जरा एक मिनट के लिए अपने जहन में सोचिए कि क्या हमारे घर में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो। क्या आज मैं तो नहीं कि किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हूं। क्या मेरे जहां मैं काम करता हूं वहां तो कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसे कोई बीमारी हो। क्या मेरे अजीजों रिश्तेदारों में कोई ऐसा तो नहीं जिसे कोई बीमारी हो। अगर है तो आज हमने यीशु मसीह से कहना है उसे क्या दे, उसे क्या दे। और यहां पर यह शख्स भी शिफायत कर रहा है, और खुदावंद को शिफायत करने वाले लोग पसंद है। शिकायत करने वाले नहीं बल्कि बोले शिफायत करने वाले, शिफायत करने वाले, किसी के लिए बात करने वाले, किसी के लिए खुदा के आगे इल्तिजा करने वाले। और ये सूबेदार भी खुदावंद से इल्तिजा कर रहा है, मिन्नत कर रहा है, समाजित कर रहा है। 7वीं आयत जी। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सब कहे आमीन। बुलंद से कहे आमीन। यीशु ने सूबेदार से कहा कि मैं आकर उसे क्या दूंगा। याद रखे, जो यीशु कहता है वो कर दिखाता है। हालेलुया। वो कल भी मौजज़ात करता था, वो आज भी करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। इस शख्स का आगे ईमान देखिए। यीशु कहता है मैं आवांगा तो उनकी दांगा। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है जी। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए जी, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा आदम शिफा पा जाएगा। सब कहे हालेलुया। उसका ईमान देखे, इतने ईमान के अंदर है। वो कहता है कि तू मेरे घर ना आ, मैं गुनहगार हूं, मैं इस लायक नहीं हूं। तू यहां से ही कह देगा तो मेरा खादिम क्या पा जाएगा। उसके ईमान को देखिए। उसने ये नहीं कहा कि इतनी देर आ, तब आ, या ऐसा कर। कहते तू अपनी जुबान से ही कह देगा तो मेरा खादिम क्या पाएगा, शिफा। याद रखे, आज लोग शिफा को ढूंढते,
पर जब हम यीशु के पास आ जाते हैं तो याद रखें वो हमारी सारी बीमारियों को दूर कर देता है। आज लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतना इतना पैसा जाया करते हैं, लाखों की तादाद, पर फिर भी उन्हें शिफा नहीं मिलती। लेकिन आपके सामने कितने लोग इस मीटिंग्स में आए हैं और जब उनके लिए दुआ की गई है और उन्होंने मुफ्त शिफा पाई है, मुफ्त शिफा पाई। हालेलुया। तो बहनें आई थी, आपने देखा होगा कि भाई अयाज इसकी गवाही भी दी थी। उन्हें क्या मर्ज था आप बताएंगे? यहाँ पर गिल्टियाँ थी और जब बड़े ईमान के साथ ये भाई लेकर आए और खुदावंद के आगे हम सब ने शिफायत की, और जब उन्होंने जाके रिपोर्ट कराई तो उन्होंने क्या बताया? यहीं से सारी गिल्टियां गायब हो गई हैं। मैं कहता हूँ जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। हालेलुया, हालेलुया। और ये शख्स भी जानता है कि यीशु मसीह अगर यहां से ही कह देगा तो सब कुछ कर देगा। कई बार हम कहते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे तो हम शिफा पाएंगे। यीशु मसीह के कहने में कुदरत पाई जाती है। उसने सिर्फ कहा, ए लाजर कब्र से आया कि नहीं आया? कितने दिन का मुर्दा था? 4 दिन का मुर्दा है। लोग रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, उसकी बहनें रो रही हैं, मातम कर रही हैं। यीशु जाकर खड़ा हुआ है, यीशु जीसस वहां पर खड़ा हुआ है। उसने कहा, ए लाजर कब्र से, और वो कफन समेत ही कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। जोरदार तालियां दें यीशु की कुदरत को, जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। और यीशु आज भी उसी तरह काम करता है। सब कहें हालेलुया। कहीं अगर तू कह देगा तो मैं शिफा पा लूंगा। आमीन। ईमान रखें। ईमान से मौजा होता है। कैसे मौजा होता है? ईमान से। ईमान अगर ठंडा है ना तो मौजा नहीं होगा। अब ये वेट करता है, यीशु मसीह आते तब उसका खादिम क्या पाता? शिफा। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है, खिदमत जो है, वो बहुत बिजी थी। इसने कहा कि इसमें ऐसी कुदरत है, ये जो मेरे सामने खड़ा हुआ है खुदा यीशु मसीह, ये मालिक और खालिक है, और इसके अंदर ऐसी कुदरत है कि ये सिर्फ बोलेगा तो मेरा खादिम जो घर के अंदर बैठा हुआ है, मेरा नौकर, उसी घड़ी शिफा पाए। हालेलुया। देखिए आगे क्या होगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूँ, जी जी, और सिपाही मेरे मुताबिक हैं, और जब एक से कहता हूँ तस्वीर यीशु ने ये सुनकर ताज्जुब किया और पीछे आने वालों से कहा, जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा ईमान नहीं पाया। सब कहे आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ताज्जुब करने लगा कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। ईमान उसका देखिए, और खुदा आपके ईमान को ही चेक करता है। आपका ईमान होगा कि आज मैं खुदा के घर में आया हूँ, मैं दुआ करूंगी, मेरी ये बीमारी, मेरी ये मुश्किल दूर हो जाएगी। और जैसा आपका ईमान होगा ना, आप उसी घड़ी शिफा पाएंगे। आप यहाँ पर बैठे बैठे ये बोलेंगे ना कि खुदा मेरा आज मुझे शिफा देगा और मैंने यहाँ से लेकर जानी, आप यकीन माने आप आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप जो कुछ मांगेंगे आपके लिए हो जाएगा। और अगर ईमान आपका कमजोर है, आप ये सोचेंगे हाँ मैं दुआ करूंगी, शायद ये मेरा काम हो जाए, तो आपका काम नहीं होगा। आपका काम तब होगा जब आप कहेंगे कि खुदा यीशु तू यहाँ से ही कह दे, तो अपनी जुबान से कह दे, तो अपना हाथ बढ़ा ले, इसी घड़ी मैं शिफा पाऊंगा, या मेरे घर में जो बीमार है वो इसी घड़ी शिफा पाएगा। यीशु मसीह ने ताज्जुब किया है और कहा ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में नहीं। ये ईमान का खुदा तारीफ कर रहा है। जी, और मैं तुमसे कहता हूँ कि वो तेरे पूरब और पश्चिम से आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ
आसमान की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे जी मगर बादशाही के बेटे बाहर अंधेरे में डाले जाएंगे वहां रोना और टांग पीसना होगा। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने जब उसका ईमान देखा है ना, गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह ने जब उसका ईमान देखा है तो यीशु मसीह ने कहा है कि बाहर से, पूरब से, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से लोग आएंगे और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बादशाही में शामिल होंगे, लेकिन जो बादशाही के बेटे होंगे वो तारीकी में रह जाएंगे। यानी जो अपने आप को आज कहते हैं कि हम लाइक अ क्रिश्चियन हैं, और अगर हम उस वक्त देखिए कि वो कहते थे हम यहूदी हैं तो हमारी ही बादशाही, यहाँ कहता है वो बाहर रह जाएंगे, उन्हें वहां डाला जाएगा जहां रोना और दांतों का, ये कलाम में लिखा है, ऐसे ही लिखा हुआ। गौर करने वाली बात कि आज हम तारीकी में हैं या नूर में हैं। जी लास्ट वर्ड। और यीशु ने सूबादार से कहा जी जा, जैसा तूने इत्काद किया तेरे लिए वैसा ही हो। सब कहें आमीन। यीशु मसीह ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तूने एतकाद किया, जैसा तूने ईमान रखा है तेरे लिए वैसा ही हो। आज खुदावंद भी हमें ये कहता है कि जिस ईमान के साथ आप आए हैं, जिस भरोसे के साथ आप आए हैं, खुदावंद उसी तरह आपकी जिंदगी में बड़ा मौजा करेगा, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो तबीबों का तबीब है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो राजाओं का राजा है। उसके नाम के आगे कोई बीमारी ठहर नहीं सकती। बीमारियां डरती हैं, बदरूहें कांपती हैं, जब यीशु नाम आ जाता है तो सारा जादू भी फेल हो जाता है। सब कहे हालेलुया। यीशु के लिए बजाएं जरा, किसी इंसान के लिए नहीं, यीशु के लिए बजाएं, जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली। जैसा तेरा ईमान है तेरे साथ वैसा ही हो। आज आप जिस ईमान को लेकर आए हैं, जिस एतकाद को लेकर आए हैं, आज खुदा आपकी जिंदगी में वैसा ही काम करे। अगर आपका एतकाद है कि मैं सिर्फ यीशु का नाम लूंगा, 1 सेकंड में शिफा पालूंगा, आप शिफा पालेंगे। आपका ईमान है, आपका भरोसा, आपका तवक्कल है, आपका यकीन है, और मेरा भी ये ईमान है कि आज खुदा आपको आजाद करेगा तमाम मुश्किलातों से, परेशानियों से, दुखों से, लानतों से, मुसीबतों से खुदा आजाद करेगा। आपका ईमान है? किस किस का ईमान है? आज मेरा खुदा काम करेगा। सब कहे हालेलुया। हाथ उठा कर कहे हालेलुया। यीशु बड़े बड़े काम करता। और काम कैसे होंगे? जब हमारा क्या होगा? ईमान। आपके घर में अगर कोई बीमार बैठा है, मेरा ये ईमान है आज उसके लिए आप दुआ जब करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर चाहे कुछ भी कहते हैं या जितने भी सालों से कोई बीमार, खुदा उसे शिफा दे। पिछले दिनों एक शख्स आया, 18 साल से बीमार। कितने साल से? 18 साल। कितने साल से? 18 साल। 18 साल से। और जब उसके लिए दुआ की गई तो उसे 2 दिन के बाद फोन किया, उसने कहा कि 18 साल से मैं बीमार था, इस बीमारी से लड़ रहा था, लेकिन जब दुआ की गई है, यीशु का नाम लिया गया है, तो मेरी सारी बीमारी चली गई। हालेलुया। मैं कह दूं तालियां कर, जोरदार तालियां। बोलो यीशु मसीह की जिंदा आसमान पर जलाने वाला। कई बार ना लोगों या गल्ला या डॉक्टरों की बातें हम सुन सुन के ना परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में पड़ते रहते हैं। डॉक्टर ने क्या सी इंज नहीं हो सकता, मेरे रिश्तेदारों ने क्या इंज नहीं हो सकता। हम बड़ा डिप्रेशन में अपनी लाइफ को गुजारते हैं बच्चों। हम अपनी सिचुएशन को देखते हैं, हम दुनिया को देखते हैं, और जब हम यीशु को देखना शुरू करते हैं तो हमें ईमान होता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएंगे। हालेलुया। होंगे कि नहीं होंगे? खुदा करेगा।
अगर हमारा ईमान है तो खुदा करेगा। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, अगर आप कहेंगे ईमान से, खुदा आपको देगा। देगा कि नहीं देगा? खुदा मुझे ये चीज चाहिए, आप मांगेंगे, आपको देगा कि नहीं देगा? किस किस ने मांगे उसे मिले? ईमान से। यहाँ तो सभी है। मांगोगे तो, ढूंढोगे तो, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। जब हम आसमान का दरवाजा दुआ के साथ खटखटाते हैं तो वो खोल देता है। हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। हम ढूंढते हैं और सब कुछ पा लेते हैं। शर्त यह है कि हमने मांगना है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने क्या करना है? मांगना है। क्या करना है? मांगना है। जो कोई खुदा से मांगता है ना, उसको कभी दुनिया में मांगते हुए नहीं देखा। और जो खुदा से नहीं मांगता वो दुनिया से मांग रहा होता है। सीखने वाली बात है। जो कोई खुदा के कदमों में आंसू बहाता है, याद रखे वो दुनिया में आंसू नहीं बहाता, दुनिया के सामने नहीं रोता है। हालेलुया। खुदा से मांगना शुरू करें, खुदा के आगे आंसू बहाना शुरू हो जाए, आपके सारे रुके हुए काम भी बहाल हो जाए। हालेलुया। याद रखे दुनिया धोखा दे सकती, दुनिया कहती है हम कुछ नहीं कर सकते, पर ईमान रखे कि खुदा सब कुछ कर सकता है। अगर आपका क्या है? ईमान। सब बोले क्या है? ईमान। अपने साथ वाले से कहे ईमान रखो, खुदा सब कुछ करेगा। ईमान रखो, खुदा सब कुछ करेगा। आए अपनी आंखों को बंद करें।